कोर फाइनेंस में आने के लिए सबसे पहले तो मन होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि बहुत कम सक्सेस रेट होता है प्रो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए। अगर तुम्हारा मन है and if you are really interested and if you want to grow in this field, I think this is the best option for you. यहाँ पे आके मेरे को नए दोस्त मिले, नई एक लाइफ आया जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे को फाइनेंस फील्ड में इतना ग्रो करने का मौका मेरे को नहीं लगता, और कहीं मैं होता तो मेरे को मिल पाता। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सेल ट्रेनिंग, पावर बीआई, ये सब करने का मौका मेरे को यहीं पे आके मिला, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव डन। एक्सेल से कैसे, किस तरह के क्वेश्चन कुछ शेयर कर पाएंगे? एक्सेल से मेरे से मैक्रोस पूछे थे, सिंपल क्वेश्चन से पूछते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं एंड हाउ मॉडल कैसे बनाते हैं। Hello friends and welcome to this podcast. So let me introduce myself first. I'm Manoj Goyal, one of the co-founder of the Wall Street School. And in today's podcast, we have a special guest with us and our distinguished student, Jeevan J. Thomas. So Jeevan has done BCom from Chris Jyoti University in Kerala. And Jeevan was part of our financial modeling and valuation program in batch 278. Post doing this course, Jeevan has secured a placement in the Newmark as a valuation analyst. And many congratulations, Jeevan. Thanks. And wish you all the best in the fantastic career ahead, in the investment banking domain. Before we start this discussion, let me set context of this podcast. So, see, the purpose of this podcast is to, help aspiring candidates who want to make career into investment banking, how they should start, and what they should learn and what are the things they should keep in mind, right? So by sharing your experience, your journey with the Wall Street School and how you secured placement, that will help them, to understand, what should be the right way. So shall we start? And I'll request you to keep this podcast as candid as possible. Yes. So first of all, Jeevan, tell us about yourself, your background, you're coming from where, I'm Jeevan, and I actually completed my graduation in Kerala from Chris Jyoti University. And where I was actually quite interested in accounts and finance and market and all those. After that, I actually tried giving some government bank exams where I actually gained more interest in financing field. And while I was there, I was in hostel, I was actually searching about investment banking course where I came to know about the Wall Street School. And then I tried contacting HR, and Khyati helped me to enroll in this course. And then I moved to Delhi, and it was a hard phase for me leaving my parents and coming here. यहाँ पे आके मेरे को नए दोस्त मिले, नई एक लाइफ आया जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे को फाइनेंस फील्ड में इतना ग्रो करने का मौका मेरे को नहीं लगता, और कहीं मैं होता तो मेरे को मिल पाता। प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सेल ट्रेनिंग, पावर बीआई, एंड ये सब करने का मौका मेरे को यहीं पे आके मिला, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव डन। तो जीवन, आपने बोला जैसे कि मैं यहाँ पे आया स्पेशली फॉर दिस कोर्स, एंड ख्याति हेल्प यू इन एनरोलिंग इन दिस बैच, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्यों चूज किया आपने? मेरे को एक्चुअली अकाउंट्स और फाइनेंस में मेरे को पहले से इंटरेस्ट था, बट अकाउंट्स वाज मोर ऑफ अ डेस्क जॉब वेयर आई डिडंट थिंक आई कुड ग्रो मोर, बट फाइनेंस फील्ड वाज, और मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अकाउंट्स फील्ड में जाते हैं और एचआर में जाते हैं, बट आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड आई वांटेड टू ग्रो इन दिस फील्ड। आई एक्चुअली वाज फैसिनेटेड अबाउट दोस थिंग्स। तो कोई एनी स्पेसिफिक, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने अपनी सीए की डिग्री कंप्लीट की थी, तो मेरे दिमाग में था कि एज इन्वेस्टमेंट बैंकर आई विल बी वर्किंग ऑन मर्जर्स, एक्विजिशंस, क्रॉस बॉर्डर डील्स एंड ऑल, स्टॉक मार्केट से डील करेंगे हम लोग। तो आपके दिमाग में क्या था कि किस टाइप का रोल आप परस्यू करना चाहते? मैंने बहुत सारी मूवीज देखी थी, वॉल स्ट्रीट हो गई या बिग मूव्स हो गई, तो ये सब देख के मेरे को स्टॉक मार्केट में भी बहुत फैसिनेशन आया, एंड मेरे को पता चला कि इसमें बहुत पैसा है। तो फिर उस वजह से भी मेरे को एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का मन किया था सर। तो आप जैसे अभी जस्ट ग्रेजुएट हैं और आपको काफी अच्छा स्टार्ट मिला है विद न्यूमार्क एज अ वैल्यूएशन एनालिस्ट, तो इट्स अ ड्रीम स्टार्ट बिकॉज जस्ट एज अ ग्रेजुएट अभी आपके पास बहुत बड़ा करियर है, राइट? तो क्या सोचा है, मतलब with this job are you planning to pursue something else, or this is the end of your academic thing and now you will be gaining experience only? अभी इसके बाद भी मेरे को और ग्रो कर, फाइनेंस फील्ड बहुत ग्रो करने का बेस्ट एरिया है, एंड आई थिंक इसके बाद अभी एक्सपीरियंस मिलने के बाद मेरे को एमबीए करना है फ्रॉम टॉप स्कूल। तो बेसिकली आप एक्सपीरियंस गेन करने के बाद यू वांट टू परस्यू एमबीए मे बी 2 years 3 years डाउन द रोड। तो सबसे पहले बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रेनिंग में, मतलब बिकॉज मेनी थिंग्स वर न्यू टू यू एज अ ग्रेजुएट, काफी सारी चीजें आपने नहीं की थी। हाँ, मेरे को ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ घर वालों से, क्योंकि बहुत फ्रेंडली, बहुत
काम माइंडेड था और ऐसा कुछ हरी अब भी नहीं था. बहुत स्लो पेस था, बहुत प्रैक्टिकल्स थे एंड आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से वेल मैनेज था एंड फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे. इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठ के हमारा अपना ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो सकता. बट ये जो ट्रेनिंग था ये कैसे आप डिफरेंट या डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम द अदर ट्रेनिंग्स और यू नो योर फॉर्मल एजुकेशन? क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली हमने की और सब इतना बुक वो टाइप भी नहीं था और जो हमारे प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, वो भी सब बहुत इंटेलेक्चुअल्स थे एंड उन्होंने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और रियल लाइफ केसेस पे भी हमने वर्क किया. इस वजह से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बाकी टीचिंग से. So basically, after gaining theoretical knowledge in your academics, so this training helped you in gaining the practical exposure. Okay, good. Any particular moment in the training जहाँ पर आपको थोड़ा feel हुआ कि यार I might be out of place, right? Or maybe this training is not right fit for me. कुछ तो ऐसा challenging feel होगा. जब हम रियल लाइफ केसेस पे वर्क कर रहे थे तो बहुत सारी नई नई चीजें हमें पता लगी कि इंडिकेट मार्केट कैसे वर्क करता है, इंडिकेटर कैसे वर्क करता है. तो पहले समझना थोड़ा मुश्किल रहता है. तो कभी कभार जब होमवर्क्स मिलते थे हमें तो पहले तो मैं दूसरों से कॉपी कर लेता था बट फिर मेरे को जब मन किया कि मेरे को खुद से करना है, फिर मेरे को खुद से ग्रो करना है इस फील्ड में, फिर मैंने ट्राई किया, मार्केट सर्चेस की, तो फिर मेरे को बाद में अच्छा लगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और इस फील्ड में मेरा एक स्कोप है. और ट्रेनिंग के दौरान कोई पर्टिकुलर फैकल्टी या मेंटोर जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया या इम्प्रेस किया? वैसे तो सर आपने ही किया, आपकी पंक्चुअलिटी ने किया मेरे को बहुत. you miss you know say name of some other faculties also. It's not like कि मैं आपसे ये डिस्कशन कर रहा था, आपको मेरा ही लेना है. हिमांशु सर ने भी बहुत मेहनत की और प्लेसमेंट टीम भी एक्चुअली बहुत सपोर्टिव है एंड बहुत वेल कामली उन्होंने मेरी सारी मदद की एक्चुअली. आई थिंक एवरीवन has impacted me in my life. And how has been your experience with your colleagues in the training? Everyone was good with me and ऐसा लगा नहीं जैसे मैंने पहले बोला, ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं फैमिली से बहुत दूर आ गया. बहुत सब वेल क्लोज थे मेरे साथ और अभी भी सब मेरे साथ टच में ही है एंड आई थिंक आई मेड फ्रेंड्स हियर फॉर लॉन्ग लाइफ. अच्छा जीवन, जैसे आपका एक ऑब्जेक्टिव था कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आना है यू नो विद दिस ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग यू सेड कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट प्लेसमेंट कैसे वर्क किया? हाउ इट स्टार्टेड एंड हु आर द पीपल वर्क हेल्प यू नो? कोर्स के बाद प्लेसमेंट सेल में मेरे को ऐड किया, पुनीत सर हैज हेल्प्ड मी अ लॉट एंड वहाँ पे हम हर दिन बहुत सारी कंपनीज इंटरव्यू के लिए आती हैं. सूटेबल जो मेरे लिए था मैंने अप्लाई किया एंड पुनीत सर ने इंटरव्यू के साथ भी बहुत सारे हेल्प किया और मॉक इंटरव्यूज भी मेरा हुआ था. आई थिंक उसी वजह से उस हेल्प के थ्रू मेरे को क्रैक करने का बहुत अच्छा मौका मिला. तो जब आपका इंटरव्यू हो रहा, दैट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू? या इट वाज माय फर्स्ट. अच्छा, तो आपने फर्स्ट इंटरव्यू Yes. कर पाए. तो कोई ऐसी स्पेशल यू नो ट्रेनिंग का कुछ स्पेशल ऐसा पार्ट जिसने आपको काफी हेल्प किया इंटरव्यू को क्लियर करने में? एक्चुअली एक्सेल से मेरे से बहुत सारे सवाल पूछे थे एंड प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर मेरे को मिला था 2 महीनों में एंड आई थिंक उन्होंने जो जो सवाल पूछे थे सबके मैंने आंसर दे दिए थे. तो एक्सेल से कैसे, किस तरह के क्वेश्चंस कुछ शेयर कर पाएंगे? एक्सेल से मेरे से मैक्रोस पूछे थे एंड सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे थे, इंसर्ट कैसे करते हैं एंड हाउ मॉडल कैसे बनाते हैं एंड ऑल. तो वो सब मेरे को ट्रेनिंग के थ्रू मेरे को अच्छा एक नॉलेज मिल गया था. कब से ज्वाइनिंग है आपका? मेरा 17 से सर. 17 से है, तो प्रिपरेशन वगैरह सब है? हाँ सब कर रहा हूँ. मेरे को आ गया एक्चुअली कंपनी के सारे लैपटॉप वगैरह बेनिफिट्स वगैरह आ गए हैं, तो अभी 17 से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. आई एम एक्साइटेड. जीवन, कोई पर्टिकुलर एडवाइस आप देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में आना चाहते हैं, कोर फाइनेंस में? कोर फाइनेंस में आने के लिए सबसे पहले तो मन होना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि बहुत कम सक्सेस रेट होता है प्रो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए. तो अगर तुम्हारा मन है एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड इफ यू वांट टू ग्रो इन दिस फील्ड, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड चूजिंग वॉल स्ट्रीट वाज द बेस्ट थिंग I could ever do in my career. Jeevan, thank you so much for coming here. It's a pleasure to having you here in podcast. See, as I told you, the purpose of this podcast is, you know, sharing your experience so that the people who are young and just want to start their career in the core finance and investment banking, they can learn from your journey, right? So good that you shared your complete insight, and definitely I'm sure the many people will get benefit out of it. I'm sure you're going to have a
excellent career ahead in the investment banking, and as a mentor we will always be with you. तो कभी भी किसी भी चीज़ का आपको ज़रूरत है, कोई भी हेल्प चाहिए हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, और भी मेंटर्स जिन्होंने आपको ट्रेनिंग में हेल्प किया, तो दे वुड ऑलवेज बी अवेलेबल विद यू, राइट. और जैसे आप यू नो यू आर कमिंग फ्रॉम द मलयाली बैकग्राउंड, तो मैंने आपसे एक वर्ड सीखा जो आपने मुझे ट्रेनिंग के दौरान सिखाया था कि व्हाट वी कॉल ऑल द बेस्ट को इन मलयाली, नन्नाइवा. Yes, sir. सो नन्नाइवा, एंड Nani, sir. थैंक यू सो मच.